السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کے وزیر IT کے تارک راما راؤ نے عنقریب عادل آباد میں IT ٹاور کی منظوری کا دیا طے خون۔ کیمپ آفس پرگتی بھون میں یوم جمہوریہ تقاریب کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ KCR نے لہرایا قومی پرچم، ریاست کی عوام کو دی مبارکباد۔ تلنگانہ بھون میں یوم جمہوریہ تقاریب کا انعقاد۔ کیشف راؤ نے لہرایا قومی پرچم۔ تقریب میں وزیر داخلہ محمد محمود علی و دیگر پارٹی قائدین اور کارکنان نے کی شرکت۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر بدھ کو یہاں راج پتھ پر منعقدہ مرکزی تقریب کے دوران دنیا نے ہندوستان کی فوجی بہادری کا مشاہدہ کیا۔ بہار کے گیا میں احتجاج کرنے والے طلبہ نے ٹرین کو آگ لگا دی۔ ریلوے بھرتی بورڈ کے امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے امیدواروں نے انٹرسٹی ایکسپریس کی ایک بوگی کو آگ لگا دی۔ ملک بھر میں یوم جمہوریہ تقاریب کا روایتی جوش و خروش کے ساتھ انعقاد۔ دہلی میں وزیر اعظم مودی نے لہرایا قومی پرچم۔ راج پتھ پر ملک کی شان و شوکت کا شاندار مظاہرہ۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کے وزیر IT و بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے عنقریب عادل آباد میں IT ٹاور کی منظوری کا طے خون دیا ہے۔ رکن اسمبلی جوگو رام منا نے KTR سے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ریاستی وزیر سے عادل آباد کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ تارک راما راؤ نے CCI کے احیاء کا بھی طے خون دیا اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر دہلی جا کر مرکز پر دباؤ ڈالا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے کیمپ آفس پرگتی بھون پر یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے بابا دستور ہند ڈاکٹر BR امبیڈکر کے پورٹریٹ پر گلہائے عقیدت بھی پیش کیا اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں امر جوان اسمارک پر پھول نچھاور کیے اور ملک کے لیے جان کی قربانی دینے والے فوجیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری سومیش کمار، DGP مہندر ریڈی، TRS کے رکن کونسل P راجیشور ریڈی، رکن پارلیمنٹ سنتوش کمار اور دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر مدینہ بلڈنگ چوراہا پر پرچم کشائی کی رسم انجام دی۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی گایا گیا۔ 73ویں یوم جمہوریہ کے ضمن میں منعقدہ اس تقریب میں کارپوریٹر سہیل قادری اور دیگر مجلسی کارکن موجود تھے۔ بھائی تھوڑا ہم لوگ کو کام کرنے دیجیے بھائی، کی خرید پہ تو قاعدہ تعلیم بھائی تھوڑا پیچھے یوم جمہوریہ کی 73ویں یوم تقریب کے موقع پر حیدرآباد کے لوگوں نے تقریبات کے ایک حصے کے طور پر چار مینار پر 300 میٹر لمبا ہندوستانی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سائبرآباد کے پولیس کمشنر سری اسٹیفن رویندرا IPS نے آج سائبرآباد CP آفس میں 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ہندوستانی قومی پرچم لہرایا۔ JTCP شری اویناش موہنتی IPS، DCP کرائمز کلمیشور شنگناور IPS، DCP ٹریفک شری SM وجے کمار IPS مادھاپور، DCP شلپاولی، DCP شمشاباد جگدیشور ریڈی، DCP کویتا دارا، DCP اندرا، ADCPs، ACPs، انسپیکٹرز، منسٹریل اسٹاف اور سائبرآباد پولیس کے دیگر افسران موجود تھے۔ CP نے ان عظیم انسانوں کی تصویروں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی عظیم قربانیوں کو یاد کیا۔
CP साइबराबाद ने इस मौके पर पुलिस एहलकारों और शहरियों को मुबारकबाद पेश की। CP ने कहा, हमारा आइन उसी दिन 1950 में नाफिज हुआ था। ठीक 73 साल पहले हिंदुस्तान एक जमहूरिया बन गया था और लोगों के पास अपनी तकदीर तय करने की इज्तिमाई ताकत है। ये हमारे जमहूरी और जमहूरी मुल्क को मनाने और उसकी खुद मुख्तारी पर फख्र करने का दिन है। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर और हमारे आइन के दीगर मुआमरों को अपनी अजीम तरीन खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने आज़ादी, मसावत और भाईचारे के अजीम उसूलों को परवान चढ़ाया। हल्के असम्बली कारवान में 73वें यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़द की गई। आज यौम जमहूरिया की 73वीं तकरीब के मौके पर MIM पार्टी कारवान MLA कौसर मोइनुद्दीन और कारवान हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स की जानिब से परचम कुशाई अंजाम दी गई, जिसमें पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। मेरे साथी नौजवान, और सबसे पहली बात, जो निज़ाम कॉलोनी में मरिका स्कूल थे, मोहतरमा साहिबा का जो हाल ही में जो हादसा हुआ, उनके स्कूल के चेयरमैन श्रीकांत साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही साथ उनके गम में भी हम शामिल रहते हैं। और मैं आप तमाम से ये कहना चाहता हूं, जो अलस्नात कॉलोनी के अभी सदर साहब ने कुछ काम बताए और मैं तमाम कामों को नोट किया, और मैं कल ही यहाँ पर दौरा भी किया था हमारे बख्शी साहब के साथ में निज़ाम कॉलोनी और अलस्नात कॉलोनी के चंद रोड थे। इंशाअल्लाह उन तमाम, सबसे पहली बात तो पार्क का जो काम बताए थे, मैं समझता हूँ कि निज़ाम कॉलोनी से जो बॉक्सजन का काम चल रहा है, उसके बाद वो बॉक्सजन के बाद मैं समझता हूँ पार्क का भी काम करा देंगे। और इस पार्क के अंदर पर जहाँ पर ठहरे हुए इंशाअल्लाह मैं कल बात करता हूँ मेंटेनेंस के ताल्लुक से, इलेक्ट्रिक पोल का बताए, इंशाअल्लाह जो भी काम है यहाँ के, जो भी रोड्स वगैरह, इंशाअल्लाह तमाम के तमाम काम मंजूर है। थोड़ी लेट हो रही बिल, जो GHMC के अंदर बिल ना होने, पेमेंट ना होने की वजह से इंशाअल्लाह उन तमाम कामों को मुकम्मल किया जाएगा। और सबसे पहली बात, 26 जनवरी के मौके पर जो प्रोग्राम रखे, इन तमाम अलस्नात कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारों का और ख़ास तौर से हमारे अब्दुल्ला साहब का, बख्शी साहब का, उनकी तमाम कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आज 73वां यौम जमहूरिया मनाया गया। इस मौके पर श्री S राजशेखर, क्यूरेटर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने इंतजामी दफ्तर के सामने कौमी परचम लहराया। अपने अपने शोबों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को तारीफी असनाद से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्री S राजशेखर, क्यूरेटर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने इस साल के दौरान बहुत से अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम अमले के अरकान को मुबारकबाद दी। और इस मौके पर श्रीमती A नागमानी, डिप्टी क्यूरेटर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, डॉक्टर MA हकीम, डायरेक्टर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, डॉक्टर शंभुलिंगम, असिस्टेंट डायरेक्टर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, श्री A सतीश बाबू, असिस्टेंट क्यूरेटर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क और तमाम स्टाफ मेंबरान इस मौके पर मौजूद थे। 73वें यौम जमहूरिया की तकरीबात के मौके पर हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री CV आनंद IPS ने बुध को CP ऑफिस बशीरबाग हैदराबाद में तिरंगा परचम लहराया। CPL एंड O श्री DS चौहान IPS, DCP श्रीमती सुनीता रेड्डी, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर श्री नरेंद्र सिंह और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री CV आनंद ने अपनी तकरीर में कहा कि 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तानी आइन नाफिज हुआ और हिंदुस्तान को खुद मुख्तार, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जमहूरी और जमहूरिया करार दिया। लिहाजा हम हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम पुलिस एहलकार अपनी खिदमत जमहूरी तरीके से अदा करते हुए आइन की रूह के साथ काम करें और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए भी अपनी पूरी कोशिशें करें। చెందిన అధికారులు, మినిస్టీరియల్ సిబ్బంది, ఇతర గార్డ్ పర్పస్కి వచ్చిన సిబ్బంది, ఇతర అధికారులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక
గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదే రోజు 1950 సంవత్సరంలో ఒక లౌకిక ప్రజాస్వామిక రిపబ్లిక్గా మన దేశాన్ని గణతంత్రం ద్వారా పేర్కొబడినది. దాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి సంవత్సరం రిపబ్లిక్ డే అనేది జనవరి 26 రోజు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. మీ అందరికీ ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ప్రకారం మీరందరూ కూడా వచ్చే రోజుల్లో ప్రజలకు సేవలు అందిస్తారని, ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం. శాంతి భద్రతలు కాపాడే పద్ధతిలో ఏదైతే మనం మెథడ్స్ అవలంబిస్తామో అవన్నీ కూడా ఈ ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తితో మీరు ముందుకు వెళ్తారని, లౌకిక తత్వం ఇవి కాపాడుతూ మనం మన డ్యూటీస్ని నిర్వర్తించాలని నేను అందరినీ కోరుతూ, మినిస్టరియల్ సిబ్బంది కూడా ఇక్కడ చాలా కృషి చేస్తున్నారు. సిటీ పోలీస్ వారు ఎంతో కష్టపడి ఫీల్డ్లో పనిచేస్తున్న సందర్భంలో మీరందరూ కూడా ముందు ఉండి వారి సర్వీస్ మ్యాటర్స్లో ఎటువంటి లోపం లేకుండా మీరు చర్యలు తీసుకుంటారని నేను ఆశిస్తూ మీ అందరి సహకారం కోరుతూ మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। AIMIM बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मौजम खान ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के मौके पर रमनस्तपुरा, ग्रेस हॉस्पिटल और दूध बावली में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर AIMIM ब्रांच के सदर अब्दुल रशीद और दीगर मौजूद थे। राजू तुम इधर आओ, तुम इधर मेरे पास, तुम इधर में इमरान देख बिहार के गया में एहतजाज करने वाले तलबा ने ट्रेन को आग लगा दी।
रेलवे भर्ती बोर्ड के इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों ने बिहार के गया में बुध को भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की एक बोगी को मुबैना तौर पर आग लगा दी। पुलिस ने कहा शरपसंदों को रोकने के लिए आंसू गैस के शल बरसाए गए। पुलिस ने मजीद कहा हालात अब कंट्रोल में है। उन्होंने उसे कोच ट्रेन को आग लगा दी है। हमने उनमें से कुछ की शिनाख्त कर ली है। गया के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी आदित्य कुमार ने कहा हम ख्वाहिशमंदों को बताना चाहते हैं कि वो किसी से मुतासिर ना हो और नुकसान ना पहुंचाए। एसएसपी ने मजीद कहा कि इस मामले को देखने के लिए हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है। CBT2 इम्तिहान की तारीख को मुतल्ले नहीं किया गया था। रेलवे के इम्तिहान के बारे में कोई अपडेट नहीं है जिसे 2019 में मुतल्ला किया गया था। नतीजे का अभी इंतजार है। हम CBT2 के इम्तिहान को मनसूख करने और इम्तिहान के नताइज को जारी करने का मुतालबा करते हैं। एक मुजाहिरीन ने कहा पटना के जिले मजिस्ट्रेट DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मुजाहिरीन ने तकरीबन 5 घंटे तक ट्रेन खिदमात में रुकावट डाली और कहा कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बारजा मुजाहिरीन को रेलवे स्टेशन से हटा दिया गया। इसी तरह के एक और वाक़े में अरड़ा में आज अलसुब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा ने भी मुबैना तौर पर एक मुसाफिर ट्रेन को आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव ने अनकरीब आदिलाबाद में IT टावर की मंजूरी का दिया तय खून। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। वजीर आला KCR ने लहराया कौमी परचम। रियासत की अवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना भवन में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। KK केशव राव ने लहराया कौमी परचम। तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने की शिरकत। यौम जमहूरिया के मौके पर बुध को यहाँ राजपथ पर मुनक्किदा मरकजी तकरीब के दौरान दुनिया ने हिंदुस्तान की फौजी बहादुरी का मुशाहिदा किया। बिहार के गया में एहतजाज करने वाले तलबा ने ट्रेन को आग लगा दी। रेलवे भर्ती बोर्ड के इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस की एक बोगी को आग लगा दी। मुल्क भर में यौम जमहूरिया तकारीब का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। दिल्ली में वजीर आजम मोदी ने लहराया कौमी परचम। राजपथ पर मुल्क की शान और शौकत का शानदार मुजाहरा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।